کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. جائیں گے اکیڈمی میں اور وہاں پہ جا کے ان کا جو ہمارے بڑوں سے ہمیں ملا ہے کہ دیدار کا شرف بھی آئے گا اور ہماری آنکھوں کو بھی تسکین آئے گی کہ ہم بارہا ان کو دیکھ سکیں گے. آج تو وہ بندے کو ہم کیسے اپنا پیر مان لیں گے اور کیسے اس طرح کا کر لیں گے کہ یہ ہمارا باعث نجات بنے گا آخرت. صحیح بات ہے. انہوں نے اپنے پنڈت کر لی ہیں، ہم نے اپنے بابے کر لی ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے اپنے پیروں کو اس نیت پہ رکھ لیے، جیسے وہ پنڈتوں پہ جا رہے ہیں ہم پیروں پہ جا رہے ہیں، وہ مندروں میں جا رہے ہیں ہم مزاروں میں جا رہے ہیں. کیونکہ میرے جو دادا ابو کے بڑے بھائی ہیں وہ بھی پیری وغیرہ والی سائڈ پہ ہیں، اور وہ جو ہے وہ اس چیز کو اس طرح لیتے ہیں کہ تو وہابی ہو گئے ہیں، تو اسلام تو خارج ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. اس طرح کی باتیں کریں گے. اسلام لینے جا رہے ہیں تو وہ اسلام نہیں مل رہا. وہاں پہ روڈوں پہ فٹ پاتھوں پہ جو بزنس کھلے ہوئے ہیں اور جو وہاں پہ منشیات کا جو بول بالا ہے ہر بازار پہ ہی تقریباً. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ میرا نام محمد معین. محمد معین بھائی کدھر سے آئے ہیں؟ جی میں شیخو پورہ سے. شیخو پورہ؟ جی. جیل میں بھی ایک شیخو پورہ ہے، وہ شیخو پورہ تو نہیں ہے؟ شیخو پورہ جو بدماشوں کا شہر ہے جو، ہاں وہ والا شیخو پورہ ہے. آپ کو پتا ہمارے جیل میں بھی نا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے شیخو پورہ کا نام ہے. میرے ابھی نالج میں آیا یہ. میرا تو فرسٹ ٹائم ادھر آنا ہوا ہے جیلم میں. اچھا اچھا ماشاء اللہ. اور اسی سلسلے میں آیا ہوں. ماشاء اللہ جی. چلو جی آپ کو ویلکم ہے جی جیلم میں، جیلم اکیڈمی میں بھی. بہت شکریہ. کب نکلے؟ سر میں صبح 5:30 بجے. 5:30 بجے؟ جی فجر کی نماز پڑھ کے. ٹھیک ہو گیا. اور ڈائریکٹ آئی؟ سر میں اپنی گاڑی پہ آیا ہوں. اپنی گاڑی پہ آیا ماشاء اللہ. اچھا جی اکیلے آئے؟ نہیں سر میرے ساتھ میرے 3 بھائی آئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ایک بھائی دبئی سے آئے ہیں، 2 بھائی میں نے ادھر سے انگیج کیے ہیں اپنے ساتھ. ہماری کلیکٹیولی پلاننگ تھی کہ ہم علی بھائی کے جائیں گے اکیڈمی میں اور وہاں پہ جا کے ان کا جو ہمارے بڑوں سے ہمیں ملا ہے کہ دیدار کا شرف بھی آئے گا اور ہماری آنکھوں کو بھی تسکین آئے گی کہ ہم بارہا ان کو دیکھ سکیں گے آج. چلو جی ضرور. اچھا یہ بتائیں کہ آج آپ جیلم اکیڈمی میں آئے ہیں جی، تو پہلے تو یہ بتائیں آپ کا جو فرقہ تھا گھر والے صاحب کا وہ کیا تھا؟ سر ان کا بیسیکلی فرقہ تھا اہل سنت والجماعت سے ہم بریلوی. اور اس میں ہمارا یہ تھا کہ وہ چشتی والے پارٹی جو ہے نا وہ ان سے ہم منسلک تھے. اور بیسیکلی ہمارے میں نے جو اپنے بڑوں سے سیکھا ہے یا ویسے سیکھا ہے، یا جو میری 12-13 ایئرز جب تک علی بھائی سے ایفیلیشن نہیں تھی اس سے پہلے جو میں نے سیکھا ہے وہ یہ سیکھا ہے کہ ہمارے جو بڑے تھے نا ان کی سیلف ریڈنگ ایز سچ نہیں تھے. ان کی دین سے آشنا اتنے وہ نہیں تھے. ان کو پتہ نہیں تھا کہ دین کیا چیز ہے. انہوں نے ان سے سنا، صحیح ہے، کسی سے چنا، اس کو اڈاپٹ کر لیا. ٹھیک ہے. اور وہ پریکٹس کیا جو آلریڈی وہ پریکٹس ہو رہا ہے. ہمارے وہ جو انیسٹس کرتے آ رہے ہیں وہ اس میں جو بھی ان کا یعنی کہ وہ دیگیں دینا، نیاز دینا، نظر و نیاز کرنا، پیروں کے درباروں پہ جانا، پیروں کے دم کرانا، حاضری کرنا، وہ سارا کچھ. تو یہ ساری چیزیں پریکٹس جب میں کرتے دیکھتا تھا نا، یا میں کرتے ان کو دیکھنا یا انہوں نے کچھ چیزیں دینا اور عقیدت اس نوعیت کی دیکھنی، تو میرے دل میں ایک چیز ہمیشہ آتی تھی کہ یہ چیزیں تو ٹھیک ہیں کہ اگر آپ اچھے گڈ کے لیے کر رہے ہو، آپ اللہ پاک کے نام کے کر رہے ہو، پر بیچ میں کہ 11ویں شریف والا کیا کنسیپٹ ہے کہ بابے 11ویں والے کے نام کی ہمارے جو بزرگ ہیں یا گرینڈ فادر ہیں، گرینڈ مدر ہیں، وہ یہ بارہا کہتے تھے کہ بابے 11ویں والے دی اسی دیکھ دینی ہے. جی جی بابے 11ویں والے دی نیاز دینی ہے جی، اسی صدقے دنا تے دیکھ دینی ہے. یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کل کلیکٹیولی کہ وہ چیزیں نا اڈاپٹ نہیں تھی ہوتی، کیونکہ ایجوکیشن بھی ہے ایز سچ. میں لائر ہوں، ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو اس میں پھر مجھے نا وہ چیز ایڈمنٹ نہیں تھی ہوتی کہ یار ایک بندہ ہے وہ 5 گانا نماز ادا نہیں کر رہا، وہ بندہ اپنے مریدین کے ساتھ اخلاقاً بھی درستگی نہیں ہے اس کی. تو وہ بندے کو ہم کیسے اپنا پیر مان لیں گے اور کیسے اس طرح کا کر لیں گے کہ یہ ہمارا باعث نجات بنے گا آخرت. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے.
इनका ये कहना था कि जी पीर अपने दरबारों पे बुलाते हैं, हाज़रियों की हमें कहते हैं कि हमें वो इजाज़त देते हैं तो हम उनकी खिदमत में जाके पेश होते हैं, उनकी दरगाह पे जाते हैं, उनकी हम कब्रों पे जाके वो जो भी एक टर्म वाइज करते हैं वो साथ देने या वहाँ पे नजराने पेश करने, चादरें चढ़ानी, वो सारा कुछ। तो इन सब से जब मैं गुजरा ना तो मैं बड़ा क्यूरियस होता था कि ये सारा कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि जो इस्लाम हम सुनते हैं या इस्लाम जो हम पढ़ते हैं या इस्लाम के जो हम सहाबा की ज़िंदगी को पढ़ते हैं उसमें हमें ये सारी चीज़ें कहीं पे नहीं मिलती। मुझे नहीं नज़र आता कि कहीं पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलीसमा किया हो, ऐसे ठीक ऐसे है, या उनका कुछ सालाना उर्स हो। जी 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 जी, आप वसल्लम की 2 बेटियां उनकी ज़िंदगी में फौत हुई। हाँ, उनका नहीं हुआ कुछ। तो फिर ये बाद वाले इतने टर्म क्यों, ठीक है। और मेरा शुरू से एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये हिंदुओं की ट्रेडिशन में हम बरे सगीर में रहे हैं, ये उससे अडॉप्ट हुए हैं। उन्होंने अपने पंडित कर लिए, हमने अपने बाबे कर लिए, ठीक है। हमने अपने पीरों को उस नीयत पे रख लिए, जैसे वो पंडितों पे जा रहे हैं हम पीरों पे जा रहे हैं, वो मंदिरों में जा रहे हैं हम मज़ारों में जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह करते कराते जब मैं पहुंचा, फिर एक टाइम आया कि मैंने कोविड के अंदर जो है ना वो जब मैंने रफ़ा यदैन से मैंने बिफोर नमाज स्टार्ट कर दी, सारा कुछ कर लिया। कोविड के अंदर मुझे जो है ना वो जब फ्री टाइम मिला तो मैं जो है वो यूट्यूब की स्क्रॉलिंग और व्लॉगिंग और ये सारा कुछ देखता था। उसके अंदर मेरा अली भाई के साथ एक क्लिप, मैंने अली भाई का एक क्लिप ऑन किया, उसके अंदर वो मुझे सारा वो बता रहे थे कि हज़रत मूसा का क्या किस्सा था, हज़रत यूनुस का, हज़रत यूसुफ का, हज़रत जो वो एक डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई है ना यूट्यूब पे। जी जी जी। तो उससे फिर मुझे बड़ा एक ग्लिंच आया कि यार ये जो बंदा बात कर रहा है ना और ये जिस तरह डिफाइन कर रहा है वो चीज़ें ही ठीक है, ठीक है। अंबिया कराम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो हमारे बड़े हैं, उनकी हमने पैरोकारी करनी है, उन पे हमने रहना है। हमने किसी दूसरे बंदे की बात नहीं सुननी कि वो कह रहा है कि जी जनाब अली आप इधर सदका दोगे या आप इधर फलाना काम करोगे तो फिर ही होगा। आप अपनी विल से दो, अल्लाह के लिए रज़ा के लिए दो, आप किसी के विल के लिए ना दो कि वो बंदा खुश हो जाए हमसे या वो करे। यही तो शिरक है, ये शिरक है और ये वाकई ही शिरक है, ये खालसतन शिरक है। हाँ। और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसी तरह करते कराते फिर आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट कर लिया और वो सारा कुछ कर लिया, पर अभी भी मेरे नेस्टर्स जो हैं वो हैप्पी नहीं है। वो बहुत ज़्यादा करते हैं कि ये जो आप है ये गलत जगह पे जा रहे हो। क्यों? क्योंकि मेरे जो दादा अबू के बड़े भाई हैं वो भी पीरी वगैरह वाली साइड पे हैं। हाँ। और वो जो है वो इस चीज़ को इस तरह लेते हैं कि तू भाभी हो गया, तू इस्लाम तो खारिज हो रहे हैं, अल्लाह अकबर, इस तरह की बातें करेंगे। और फिर भी कोशिश यही है कि अल्लाह पाक उनकी भी हिदायत फरमाए, हमारे बड़े हैं, अब उनसे उस तरह हम बात नहीं कर सकते ना। बिल्कुल सही कि ये बात गलत है या ये बात ठीक है। दुआ करो जी, उनके लिए दुआ करें और जितनी भी कोशिश है वो करें। और ये भी कर रहे हैं कि अभी मेनली जो दुख की बात है ना, जो मेरे लिए सबसे बड़ा दुख है वो मुझे ये आ रहा है कि यार हक पता लगने से पहले हमारे कई बड़े चले गए, हमारे कई इस तरह के लोग चले गए। सबका ही दुख है ना जी, ये कई इस तरह के लोग चले गए जो जिनको हक पता ही नहीं लगा। ये हम सबका दुख है मेरे भाई, इसमें तो सब एक जैसे हैं। तो इस तरह करते कराते ये सारा सीन सिनेरियो है। ये सहाबा की जिंदगी अभी आपने कहा ना कि वो पढ़ी और उधर से पता चला, तो यार ये तो हम इस जनरेशन ने पढ़ी ना, वो ही ना, इससे पहले तो सारे ऐसे चले। उन्होंने बस सुना है कि हाँ जी जी बाबे यारवीं दिन आदा है देना है, फलाने दिन आदा है, वे उनके लिए तो बस अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। जी जी दाता साहब जाके देख दे दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे भी जाते हैं तो वो वहाँ पे भी वो चीज़ नहीं हमें मिलती जो हम लेने जाते हैं। यानी कि हम अगर वहाँ पे इस्लाम लेने जा रहे हैं तो वो इस्लाम नहीं मिल रहा। वहाँ पे रोडों पे फुटपाथों पे जो बिज़नेस खुले हुए हैं और जो वहाँ पे मंशियात का जो बोलबाला है हर बाज़ार पे ही तकरीबन, तो वो उस तरह नहीं है जो होना चाहिए। फिर ये सारा कुछ करने के बाद जो है ना वो मैं अली भाई का बहुत माशाअल्लाह मशकूर तहे दिल से हूँ। क्योंकि इसके अलावा मेरे ख्याल से कि अगर ये भी अगर अली भाई एफर्ट या मौलाना इसहाक साहब या उनसे पहले डॉक्टर इसरार साहब ये सारे ना करते ना, तो मैं समझता हूँ कि ये नस्ल भी चले जानी। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि हमारे पास बीइंग सोशल वर्कर जितनी लाइफ टफ हो गई है, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम जाके इस तरह बुक्स को स्क्रॉल करके एक
परमानेंट चीज़ को निकाल के और उसको सही बात है करके ये फिल्टर करके ये पर्टिकुलर चीज़ है, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं। टाइम क्योंकि लाइफ ही इतनी को ज़्यादा हो गई है, अपना तगोदो में बंदा इतने को ज़्यादा घुस गया है कि वो नहीं निकालता। पांच गाना नमाज जो है वो अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अली भाई के बयानात के बाद जो है वो बेहतर फरमाई है, उसमें भी कभी कोताही हो जाती है, अल्लाह पाक हदायत दे मज़ीद। बस यही है कि बहुत ज़्यादा जो है वो दिल करता है कि सुना जाए, दिल करता है कि देखा जाए, दिल करता है कि उनका जो भी बात है उसको मान लिया जाए। क्यों? क्योंकि जो पहले वाले थे और अब वाला है, ठीक है, हमारा असली है, ठीक है ना, हमारा असली है, हमारा बेहतरीन है, हमारे में कोई शक व शुबा नहीं है, हमारे ने कोई अपना वो निज़ाम लेगेसी नहीं बनाई, ठीक है। हमारा बंदा जो है वो हमें जोड़ रहा है डायरेक्ट मदीना वाले से, ठीक है, डायरेक्ट अल्लाह से, ठीक है। और हमने यही अल्लाह के आगे पेश होना है कल को कि हमने आपको 1400-1500 साल बाद भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तरीके थे उनको एडमिट करने की कोशिश की है। बेशक हमने कोशिश की है कि कुछ ना कुछ जो भी हमारी इस्तात थी या जितना अल्लाह ने हमें अता किया हम उसको अकॉर्डिंग टू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डायरेक्ट जो असूल हैं या रूल्स हैं या जो उनकी लेगेसी सेट हुई है उसके मुताबिक करें, ताकि लाइफ जो है वो आखिरत, ये लाइफ बहुत छोटी सी है, ठीक है, आधी गुजार चुके हैं, क्योंकि ऐसे है जी, ऐसे 60-70 मेजर ये जा रही है लाइफ, आधी गुजार चुके हैं, आधी जो रह गई है वो ये है कि हम हक पे गुजार लें, ताकि कल को खुदा से करें कि हमने जो आपने तालीमात दी हैं उसी पे हम जहाँ तक कर सके हम करके आए। सही बात है जी, बिल्कुल सही बात। अच्छा, अब जो आपकी अपनी फैमिली है, घर वाले जी, वालिदैन जी, उनको भी कोई दावत का असर हो रहा है या बिल्कुल वो दूसरी साइड पे चल रहे हैं, जो नानका दाद का है? वालदा जो है वो एक बात करती हैं, वो मुझे यही बात करती हैं कि बेटे हमेशा जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो करें। मैंने कहा माँ जी अच्छी लगने की बात नहीं है, हाँ, अच्छी क्या लग रही है? अच्छी नहीं लग रही, मैंने कहा अच्छी लगने की बात नहीं है। अब आप जो बात कर रहे हैं मेरे साथ वो ये है कि आप कह रहे हैं कि मुझे अच्छा लग रहा है कोई गुनाह करना, तो मैं वो कर लूँ, वो बात तो नहीं हो सकती। तो इसका यही हल है कि मैं जो इस्लाम के अकायद है उस पर जी, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहा हमने वो करना है, वो मेरे से बात करें। उसके अलावा यानी कि और कोई बात नहीं समझ आती। वो कहती हैं कि बेटे देखें ये सारा कुछ है, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते कराते मैंने वो LED पे लगा देने, बयानात सुना देने। हाँ। वो क्योंकि उनके पास जो चीज़ पहुंची थी ना, कोई यूट्यूब और फेसबुक और टिकटॉक का एल्गोरिदम इस तरह का होता है कि अगर आप किसी चीज़ को लाइक कर रहे हो ना तो आपके लाइक के थ्रू पहुंचेगी, अगर आप किसी चीज़ को डिसलाइक कर रहे हो ना तो आपको डिसलाइक के थ्रू पहुंचेगी। जैसे वो अगर वो कहते थे कि ये जुबान के थोड़े तल्ख हैं तो उनको वो तलखियात फिक्रे ही पहुंच रहे थे। फिर मैंने उनका आहिस्ता करके यूट्यूब ज़रा बयानात की तरफ लेके गया, ज़रा एल्गोरिदम यूट्यूब का सेट हुआ। फिर उन्होंने जब बयानात को अडॉप्ट किया ना, आफ्टर दैट वो माशाल्लाह पूरी रिट्रीव पूरे कन्वर्ट हो गया। चलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। फर्स्ट टाइम आए आज? जी सर, मैं फर्स्ट टाइम। चले, आज आपके उस्ताद मोहतरम से इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी इंशाल्लाह। अच्छा लगा जी, आपने ये जो सफ़र किया, आप इंजीनियर साहब से जो मोहब्बत करते हैं वो अल्लाह के लिए करते हैं। बिल्कुल, ये सफ़र आपने जो किया ये अल्लाह के लिए किया, अल्लाह ताला ही आपको इसका अजर देगा। अच्छा लगा आपसे बात करके, अभी आप बैठे, और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।